Okay, I think we should start now. There are only 67 students. Total 200 plus students are there. The holiday is from Monday, not today. So, happy? Okay. You got the news, no? About your holidays? Yes, ma'am. We got the Yes, ma'am. Yeah. Yes. We got the news. Yes. Yes, you can mute your mics. Okay, so we'll start with the session. So today we will just go through the overview of our first chapter, that is basics of information technology. Actually, there is no point in starting the chapter because again there will be 1 month of gap in between. So we will quickly see what all things we'll be studying in this chapter. Okay. So first, there are some points which we have already discussed. So I would like you to tell what exactly those are. So first point we saw data and information difference. So can anybody tell me what it is? Ma'am, screen is not visible. Not visible. Is it the case with all? No, ma'am, it's visible. We can see. Okay. So you can check your network better. The problem is at your end. So data and information. So first tell me, are they same? No, ma'am. You can answer one by one. If somebody has already started speaking, so you can start after they finish. Okay, don't talk simultaneously. Yes. Yes. Nobody? Hello? Ma'am, data is collection of facts, Facts. while Okay. information is how we understand those facts in context. Okay. Very good. So data is basically collection of the real facts. But by just looking at the data, we cannot understand anything. So to understand that data has to be processed. So this data is given to the computer and it processes that data in such a way that the user can understand what exactly the data is. Okay. So this is what data and information. मतलब हम information देख के कुछ analysis कर सकते हैं. Okay, but just by looking at the data, we cannot analyze anything. For example, you solve your paper, right? So when you solve the examination paper and when the teacher checks, so every question you have got some marks. Okay, just by looking at the questions which you have answered, we cannot understand anything. We cannot understand your result. But when those marks are summed up and all the marks of your subjects are totaled and then your result is calculated, so that processing part, after the processing part, whatever the thing which we get is called the information. From that information we can analyze something ki baba this person has got 75% marks and he has got maybe 5th rank in the class out of 100 students. So this is what exactly is data are the raw facts. By looking at the data we cannot understand anything, we cannot analyze that data, but once there is some processing done on the data, we get some information from that data. So to get the information, the input will be what? Data. Agree? हम जब डेटा का इनपुट कंप्यूटर को देंगे वो उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा और वो प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी हमें डिस्प्ले होगा इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड एज द इंफॉर्मेशन through which we can analyze whatever is given. Samjha? So data and information are not the same. Then second we had seen computer system. So क्या देखा इसमें हमने computer system में? Why it is called as a system? Yes, anybody? Students, am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ बोलो. Yes, ma'am. Ma'am, हाँ हाँ समझा. computer system is an integrated device. It inputs devices and it processes, it stores data and information.
ओके, वेरी गुड. सो बेसिकली सिस्टम मतलब क्या होता है, अलग अलग एंटिटीज कंबाइन करके जो बनता है उसको बोलते हैं सिस्टम. और हर एक एंटिटी जो भी इन्वॉल्व है उसका अलग अलग काम होता है कि बाबा ये एक काम वो वही काम देखेगा, दूसरा जो एंटिटी है वो वही काम देखेगा. तो ऐसे मिला के जो भी एंटिटीज इन्वॉल्व है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके वो काम करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कंप्यूटर सिस्टम. सो वी कैन सी अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फर्स्ट थिंग प्रोसेसर, है ना सब. कंप्यूटर मतलब बेसिकली क्या होगा, मेजर उसका क्या एंटिटी है, प्रोसेसर. उसके बाद अगर मुझे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है तो व्हाट डिवाइसेस आई रिक्वायर, क्या लगेगा मुझे अगर मुझे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है तो विच ऑल डिवाइसेस विच वी यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. Keyboard, mouse. Very Keyboard. good, very good. So Monitor. the devices, yes, correct. The devices which we use to interact with the computer, मतलब हम उसको input दे रहे हैं through some devices, बराबर है. तो those all devices through which we give the instruction or some data to the computer are called as the input device, है ना. और जब भी कंप्यूटर उस डेटा पे प्रोसेसिंग करेगा और हमको डिस्प्ले करेगा, तो जब हमको डिस्प्ले करता है तो व्हाट ऑल डिवाइसेस आर देयर कि कंप्यूटर हमको उसका रिजल्ट दिखाता है. यस, कंप्यूटर कुछ. वेरी गुड, मॉनिटर. Monitor. एग्जैक्टली, Printer. मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर. एक्सीलेंट. सो जिस डिवाइसेस से कंप्यूटर हमको कुछ आउटपुट दे रहा है, सम रिजल्ट इट इज शोइंग अस, सो दोज आर कॉल्ड एज द आउटपुट डिवाइसेस, राइट. कैन अ प्रोजेक्टर बी कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस? Yes, ma'am. Yes, Yes, or ma'am. input device. Okay. Webcam. Please mute your mic. Webcam. Manasi, I think your mic is unmuted. Yes. क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? Is the webcam input device or output device? Input device. Input device. पक्का? Input device. Anybody with output device option? Ma'am. Yes. सबको input device लग रहा है? मैम आउटपुट डिवाइस है. आउटपुट डिवाइस है. यस मैम. ओके, वेब जो बोल रहे ना आउटपुट डिवाइस, कैन यू टेल मी वेबकैम का काम क्या है? मैम वो उससे हम लोग का मतलब जो हम लोग का इमेज होता है वो सामने दिखता है, वीडियो दिखाते हैं, वीडियो कॉल्स. Capture pictures and videos. Okay. What word you used? It captures the picture. मतलब क्या कर रहा है वो, यूजर से इनपुट ले रहा है कि दे रहा है? कैन वी सी समथिंग इन अ वेबकैम? Nope. Just think on it. I'll give you 2 minutes. Think on it कि क्या हो सकता है वेबकैम. सोचो. Ma'am, it is used to used as security camera, na? It is used to Security system, CCTV. हाँ ठीक आहे. नाही वेबकॅम म्हणजे आपला लॅपटॉप वेबकॅम असतो, तर तो काय काम करतो? सिर्फ 3 गोष्टी आहेत कंप्यूटर सिस्टम मध्ये, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आणि मधला प्रोसेसर. सो अभी हमने देखा कि इनपुट डिवाइस मतलब क्या, कि हम यूजर्स कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ इनपुट को कंप्यूटर को दे रहे हैं, दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस. और जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके हमको जो आउटपुट दे रहा है वो होते हैं आउटपुट डिवाइस. सो माय क्वेश्चन इज वेबकैम क्या कौन सी कैटेगरी में आएगा, वेदर इट विल कम एज अ इनपुट और आउटपुट डिवाइस? Ma'am, can I answer? Yeah, please. Ma'am,
it is an input device because it captures the pictures and it displays it on the monitor for us. We यस don't वेरी see गुड. तो उसका बेसिक काम क्या है? कैप्चर करना. मतलब क्या है? वो इनपुट ले रहा है एंड देन इट इज गिविंग टू द कंप्यूटर, राइट? एंड फिर कंप्यूटर उसको डिस्प्ले करता है दूसरे के स्क्रीन को. नाउ सपोज आई हैव ऑन माय वीडियो, सो मेरा वेबकैम ऑन हो जाएगा, बराबर है? तो उसका काम क्या रहेगा? वो ऑन हो जाएगा, तो इट विल स्टार्ट कैप्चरिंग व्हाटएवर इज डिस्प्लेड, और उसको जो भी दिख रहा है उसके वेबकैम के सामने, इट विल कैप्चर एंड इट विल डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन. तो वो क्या कर रहा है? इट इज कैप्चरिंग एंड गिविंग द इनपुट टू द कंप्यूटर. एंड जो भी आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे मेरा वीडियो, तो योर मॉनिटर इज शोइंग द स्क्रीन, नॉट द वेबकैम. अंडरस्टूड? समझा कि नहीं? कि स्टिल कंफ्यूजन? Yes, ma'am, समझा. समझा? Yes, ma'am. तो लेटर, यस, ओके, वेरी गुड. सो नेक्स्ट हमने देखे पेरिफेरल डिवाइसेस. तो क्या होता है पेरिफेरल डिवाइसेस? एक एक करके बोलो. Ma'am, बोलो. peripheral devices are nothing but just auxiliary devices. ओके, कैन They- एनी एग्जांपल्स? Ma'am, keyboard, mouse, printers. मतलब इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट वी कैन से, जो भी हमारा मेन प्रोसेसर है वो किसके Input अंदर and, बैठा है? output सीपीयू device. में. हाँ, करेक्ट. जो भी हमारा प्रोसेसर है वो कहाँ है? सीपीयू में है. और उस प्रोसेसर को हम जो भी डिवाइसेस अटैच करते हैं, कुछ भी, whether it is a keyboard, it is a mouse, it is a printer, scanner, projector, speaker, webcam, so all these devices which are connected to the CPU, those are called as the peripheral devices. Okay, in the upcoming slide we'll see different peripheral devices. Then next we saw software and hardware. So first tell me, software के कितने types हैं? We have seen this last lecture. Software 2 types. 2 types. कौन से? Open source. Application software. सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके ओके, वेरी गुड. तो अभी हम क्या करते हैं ना, एक्चुअली उन स्लाइड पे जाते हैं. ठीक है? सो ये देखो, ये डेटा का एग्जांपल है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन. सो इन द लेफ्ट साइड यू कैन सी देयर इज अ डेटा व्हिच इज व्हाट? ऑल रॉ फैक्ट्स. ये दिख रहा है लेफ्ट साइड में, डेटा व्हिच इज अनस्ट्रक्चर्ड, और उसी को प्रॉपरली फॉर्मेट करके राइट साइड यहाँ पे डिस्प्ले किया है, वो बन गई हमारी इंफॉर्मेशन. सो हमारी जो इंफॉर्मेशन तैयार होती है वो किससे तैयार होती है? हमारा जो इनपुट दिया गया है एज एन, सॉरी, हमारा जो डेटा दिया गया है एज ए इनपुट, उस पे प्रोसेसिंग होके जो भी बनता है वो होता है इंफॉर्मेशन, राइट? विच इज प्रॉपरली फॉर्मेटेड. नाउ दिस इज द कंप्यूटर सिस्टम. इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, और यू कैन से आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर. मतलब वो दिखाएगा कि कौन से एंटिटीज है जिन, और उनका रोल क्या है. तो इन शॉर्ट यू कैन सी मेजर कितने हैं? 3 हैं. पहला क्या है? इनपुट डिवाइस, देन आउटपुट डिवाइस और आउटपुट यूनिट, और बीच में का जो पार्ट है दैट इज आवर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द सीपीयू. इन सीपीयू में भी अलग अलग एंटिटीज है, जिसमें क्या है? पहला स्टोरेज यूनिट. अभी ये इन शॉर्ट देख लो क्या है. आगे हम जब एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हर एक डिवाइस हम डेप्थ में स्टडी करेंगे. तो सीपीयू में मेजरली क्या है? स्टोरेज यूनिट. तो क्या रहेगा स्टोरेज यूनिट? क्या रहेगा एग्जैक्टली? मैम एसएसडी और एचडीडी. ओके, आपने बहुत आगे का बता दिया. एक सिंपल लैंग्वेज में बोलो, स्टोरेज यूनिट मतलब क्या क्या रह सकता है? सबको समझ में आएगा ऐसे. जो हम डॉक्यूमेंट्स लोग अपना प्रोग्राम जो सब कुछ सेव करेंगे, स्टोर तो करेंगे. कैन वी से इट एज अ मेमोरी? यस. Yes. मेमोरी में क्या करते हैं हम? डेटा हमारा स्टोर कर सकते हैं. तो वो जो मेमोरी है वो भी अलग अलग टाइप्स की रहती है. आपको शायद पता होगा, मे बी रोम रैम यू हैव स्टडीड अर्लियर, है ना? रोम रैम. यस मैम. यस. सो वोलेटाइल वर्ड ऐसे सुना है क्या कभी आपने? वोलेटाइल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं. Yes, ma'am. मे बी केमिस्ट्री या साइंस टू, अगर आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा रहेगा तो. वोलेटाइल मतलब क्या है? वो चीज उड़ जाती है ना? इट डिसअपियर्स और डिसॉल्व्स इन द boiling point. हाँ, वॉलेटाइल. सो अभी अगर कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वॉलेटाइल अगर वर्ड हम ये करें तो क्या हो सकता है? वॉलेटाइल Changeable.
टेम्परेचर. ओके Ma'am, ओके. RAM. सो Yeah. हाँ रैम बोलो बोलो. Ma'am, RAM is volatile. यस वेरी गुड. वॉलेटाइल मतलब क्या है, हम अगर कुछ स्टोरेज यूनिट में हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं तो कुछ एक्टिविटी के बाद हमारा डेटा डिलीट हो जाता है. जस्ट 1 सेकेंड ना. हाँ हाँ ओके. क्या बताया मैंने कि हमारा जो स्टोरेज यूनिट मतलब क्या है, मेमोरी, और उसमें हम हमारा डेटा स्टोर कर रहे हैं. तो वॉलेटाइल मतलब अगर उस मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर्ड है और पावर ऑफ हो गया, लाइट चली गई, तो वो डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है. सो सच टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एज द वॉलेटाइल मेमोरी. समझा? See, all these electronic devices require power supply, है ना. Either you can give a direct power supply or you can give battery, है ना. बैटरी से उसको सप्लाई दे सकते हैं. मैम तो अगर रोम का मतलब रोम, सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम एंड रोम. ये हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा. जस्ट इन शॉर्ट अभी पढ़ना है, ये सारा डेप्थ में देखेंगे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, रोम एंड रैम. कौन सी ज्यादा रहती है हमारे मशीन की, रोम ज्यादा रहती है कि रैम? रोम ROM. रोम रहती. ROM. बट हम प्रोसेस या हम कोई कंप्यूटर नया खरीद रहे तो आप स्पेसिफिकेशन में रैम देखते हैं कि ज्यादा रैम होना चाहिए, ऐसे देखते हैं आप कि कुछ भी चलेगा? Yes, Just tell ma'am, me नहीं, RAM whether ज़्यादा होना whether चाहिए. whether you will go for a 4 GB RAM or a 8 GB RAM. मैम 8 GB RAM. 8 GB. Why like that? Why? मैम क्योंकि RAM 8 GB RAM का प्रोसेसर अच्छा होता है. 8 GB RAM का प्रोसेसर अच्छा होता हाँ है. मतलब Okay. स्पीड आई मेंट स्पीड. या करेक्ट. उसका जो रिलेशन है या उसका जो काम है वो स्पीड. हमारा प्रोसेसर कितना जल्दी जल्दी काम कर रहा है. तो देखो हमारा जो डेटा है हम दे रहे हैं इनपुट डिवाइसेस दे रहे, राइट. तो वो कहीं स्टोर होगा, तो वो जो स्टोर होगा ना डेटा, वो हमारे मेमोरी में स्टोर होगा. तो अगर हमारी रैम बड़ी है तो जो प्रोसेसर को जो डेटा जाएगा वो जल्दी जल्दी जाएगा, क्योंकि हमारी रैम उतनी बड़ी है. इसलिए अब जब भी कोई नया डिवाइस खरीदते हैं तो यू लुक फॉर अ हायर वर्जन ऑफ रैम, मतलब ज्यादा डेटा स्टोर करने वाली रैम. सो वी विल गो फॉर 8 GB रैम इंस्टेड ऑफ 4 GB रैम, राइट. जिससे हमारा जो प्रोसेसर का स्पीड है या प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगा, तो हमारा जो काम है या आउटपुट रिजल्ट आएगा वो फटाक एकदम जल्दी से आएगा. समझे? और नेक्स्ट जो है कंट्रोल यूनिट और जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो एक्चुअल काम करते हैं प्रोसेसिंग का. अभी इसमें देखो स्टोरेज में क्या किया, सिर्फ हमने जो इनपुट दिया कंप्यूटर को वो मेमोरी में स्टोर हो गया. अब उस पे जो भी एक्चुअली काम करना है, जो प्रोसेसिंग करना है, वो ये दोनों करेंगे, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. समझा? और ये जो प्रोसेसिंग होने के बाद हमको कंप्यूटर जो भी डिस्प्ले करेगा, वेदर इट इज अ मॉनिटर, इट इज अ प्रोजेक्टर और इट अ प्रिंटर, ये हमको उसका रिजल्ट उस डिवाइस में दे देगा. तो ये समझ में आया आपको? मेजर कितने एंटिटीज है? 3 है. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और बीच का जो काम करने वाला है वो है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इधर तक क्लियर है? ये जस्ट शॉर्ट में बताया है मैंने. यस, इज इट क्लियर? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम. Yes, ma'am. Yes. ओके. सो ये अभी देखो पेरिफेरल डिवाइस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब जो भी सीपीयू को हम कनेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस. तो क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें? पहला क्या है? प्रिंटर है. फिर क्या दिख रहा है? मॉनिटर है, वेबकैम है, माउस है, स्पीकर है, स्कैनर है. See, there is also shown a USB, मतलब जो हम पेन ड्राइव भी लगाते हैं. It could be also come as a peripheral device. Why? Because we are connecting it to the processor. Then next क्या है? ये नीचे क्या दिख रहा है? नीचे can you see here? External. Below the हाँ, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है ना, एक हमारे कंप्यूटर में होता है. और अगर आपको मतलब आपका डेटा ज्यादा है, जो आपके जो पीसी में इनबिल्ट जो है हार्ड डिस्क उसमें नहीं बैठ रहे, तो यू कैन ऑब्वियसली बाय एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जिसपे हम स्टोर कर सकते हैं डेटा. और उसका जो पोर्ट रहता है वो क्या है? यूएसबी. यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? सी हम सब लोग यूज करते हैं ना यस, यूनिवर्सल यूनिवर्सल Service bus.
सर्विस सीरियल बस। सीरियल बस। ओके देखो आप ढूंढ के आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओ, ठीक है। और क्या क्या नया दिख रहा है यहाँ पे? यूनिवर्सल बस। इट इज यूनिवर्सल सीरियल बस, राइट। नेक्स्ट क्या है? माइक दिख रहा है। फिर क्या है? हमारा राउटर है ना, हम राउटर भी कनेक्ट करते हैं। मॉडेम, मॉडेम पता है किसी को क्या रहता है मॉडेम? Yes, ma'am. It's like router only. हाँ, उसका काम क्या रहता है? To means like hotspot it is. Means, तो मुझे बताओ राउटर है वो सेम है एज लाइक मॉडेम, या मॉडेम का कुछ अलग काम है? ma'am, we can carry Ma'am, modem anywhere. हाँ, We can carry modem anywhere. which modem? Can you give me any example? Are you talking about a dongle? मीन्स जो जियो का जो आता है वो बता रहे हैं आप? ऐसे जो कैरी करते हैं वो मॉडेम, ऐसा बोल रहे हैं? ओके, सो ये भी एक होमवर्क है कि राउटर और मॉडेम सेम है कि अलग अलग है। आप नेक्स्ट लेक्चर में हम जब डिस्कस करेंगे एक्चुअली तब बता देना, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर कम्स द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पार्ट। तो पहले हमें ना हार्डवेयर का देखते हैं। हार्डवेयर मतलब क्या है? जो भी कंपोनेंट्स है जो एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, है ना, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, वी कैन टच एंड फील देम। सो दोज आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो क्या क्या है? कैबिनेट केस मतलब क्या रहता है? स्लाइड ये नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है नाउ? नहीं। नीरज बोलता है का? यस मैम। नीरज बेटा, कैन यू चेक योर नेटवर्क? एक्चुअली यू आर द ओनली वन हु इज नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, है ना? बाकी को दिख रहा है ना? मैंने 2 Yes, बार ma'am. लीव करके फिर से ज्वाइन किया। यस मैम। Yes, ma'am. ओके सी बेटा, एक्चुअली क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है ना उसको बहुत ज्यादा डेटा लगता है एंड इट रिक्वायर्स अ गुड नेटवर्क, सो प्लीज चेक योर नेटवर्क। See, from my end it is proper, there is no issue. Please check your network range and set accordingly. ठीक है? Okay. So what is a cabinet case? मैम जिसमें मदरबोर्ड और जो सारा होता है वो हाँ। उसमें जाता है। हाँ, तो जो हमारा जो सीपीयू रहता है वो जो बाहर का जो है उसको बोलते हैं कैबिनेट केस, मतलब जिसमें हमारे जो सारे इंपॉर्टेंट जो डिवाइसेस है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मदरबोर्ड, मैम जिसपे तो- प्रोसेसर रैम वो लगता है। हाँ, जिसपे एक बोर्ड रहता है जिसपे हमारा एक्चुअल प्रोसेसर बैठा हुआ है, उसके बाजू में कुछ फैन वगैरह रहेगा और उसको जो लगने वाले डिवाइसेस है वो एक बोर्ड पे। हैव यू सीन द पीसीबी? इट इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी मतलब वो जो Yes. ग्रीन कलर का रहता है और उसपे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं, छोटे छोटे डॉट्स, ऐसे लाइंस, है ना? हाँ, तो वो क्या रहता है? वो सर्किट रहता है एक्चुअली, एक स्मॉल VLSI उसको बोलते हैं, मतलब वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसमें हमारा प्रोसेसर बैठा रहता है और उसके जो अलग अलग डिवाइसेस है या आईसीज है। आईसीज पता है आपको? आईसीज मतलब ऐसे छोटे ना ब्लैक कलर के छोटे छोटे Integrated पिन circuit. या इंटीग्रेटेड सर्किट पिंस के जैसे रहते हैं और उसमें एक बड़ा सर्किट को एकदम कॉम्प्रेस करके छोटा करके उसको बिठा रहता है, उसको बोलते हैं आईसीज। तो वो जो सारी लगने वाली चीजें हैं वो एक बोर्ड पे ना ऐसे बिठाए रहते हैं जिसमें हमारा प्रोसेसर है और आजू बाजू में वो जो डिवाइसेस रहते हैं वो लगा है, तो उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। तो अगेन इट कम्स एज हार्डवेयर। सेम रैम, रैम कैसी रहती है? ऐसी चपटी ऐसी पट्टी रहती है ग्रीन कलर की, है ना, और उसको हम ऐसे ऐसे स्लॉट में एंटर करके रखते हैं। आप वीडियो गेम्स खेलते हैं? अभी के में भी वीडियो गेम्स अलग है, बट पहले कुछ साल पुराने ऐसे वीडियो गेम्स आते थे, है ना, उसके कैसेट्स रहते थे और हम ऐसे उसको अंदर डालते थे, तो वो जो ग्रीन पट्टी है और वो स्लॉट्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे, तो हम गेम खेल सकते थे, है ना। तो वैसे ही उसके अंदर जो पट्टी रहती है वैसी रहती है रैम, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में मतलब क्या है? हमारा जो एक्चुअल जो भी हम फोल्डर्स फाइल्स हमारे कंप्यूटर में डालते हैं वो हमारे हार्ड डिस्क के मेमोरी में रहते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज सीपीयू। व्हाट इज दिस एसएमपीएस? मैम पावर सप्लाई यूनिट।
है ना? जिससे पूरे कंप्यूटर को पावर मिलता है। ओके, इज इट इनबिल्ट? नो मैम, मतलब अलग सीपीयू से में नहीं रहता है? मैम, कैबिनेट में रहता है। हाँ ओके, मैम, कैबिनेट कैबिनेट से करेक्ट उसको मदरबोर्ड में पावर मिलता है। यस, वेरी गुड। तो वो क्या, उसका काम क्या है ना, इट इज गिविंग द पावर सप्लाई। और क्यों है, अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर चलेगा क्या? नो मैम, सी एक्चुअली क्या है, हमारा जो सप्लाई आता है वो में भी ज्यादा हो सकता है हमारे कंप्यूटर के लिए। तो ये जो है वो हमारा प्रोटेक्टिंग डिवाइस भी एज एक्ट करता है, और जितना सप्लाई कंप्यूटर को जरूरी है उतना ही देता है। कभी कभी होता है, देखो, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, है ना? तो दिस स्विचिंग मोड पावर स्टेबलाइजर सप्लाई, का भी काम करता है हाँ वो। हाँ, वेरी गुड। सो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है टू प्रोटेक्ट आवर डिवाइसेस ऑल्सो। सी ज्यादा अगर सप्लाई अगर तो हमारे में भी जल भी सकता है डिवाइसेस, है ना? तो उसको जितना रिक्वायर्ड है वोल्टेज, वो उसको सप्लाई करने का काम करता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, कीबोर्ड, माउस। व्हाट इज दिस नेक्स्ट? प्रिंटर, स्पीकर, एक्सेट्रा। Devices. ओके, राइट। तो ये समझ में आया हार्डवेयर। तो विल मूव टू द सॉफ्टवेयर। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। वन इज व्हाट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? मैम जो कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर चालू होता है इससे। हाँ, तो क्या डालते हैं पहले? अगर आपने सपोज कंप्यूटर खरीदा है नया, तो पहला वो जो इंजीनियर है, जो काम करने वाला, वो पहला क्या डालता है आपके कंप्यूटर में? विंडोज। क्या डालता A है? system. विंडोज। नहीं समझ में आया। Oh yes, operating system. Yes, he first has to install the operating system, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, जो भी हम हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? वी आर द यूजर्स हु आर गोइंग टू यूज देम, राइट? हार्ड आउटपुट डिवाइस हो या इनपुट डिवाइस। तो वो जो एक यूजर के साथ मीडिएटर का जो काम करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मेनी अदर रूल्स सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू डू, बट ये जो काम करता है क्या है, मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, अगर मैंने सपोज कीबोर्ड लगाया है मेरे इस मशीन को, बट देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम और देयर आर नो ड्राइवर्स ऑफ द कीबोर्ड, तो माय कीबोर्ड वोंट वर्क, वो उसका काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उसको प्रोसेसर के साथ और हम यूजर्स के साथ इंटरेक्शन करने में मदद करता है। ठीक है, तो वंस वी हैव इंस्टॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हमारा क्या होगा, कंप्यूटर चालू हो जाएगा, सारे हमारे आउटपुट इनपुट डिवाइसेस एक्टिव हो जाएंगे और उनको पता है क्या क्या काम करना है। अभी हमको जो एक्चुअली काम करना है वो क्या है, हमको कोई ब्राउजर यूज करना है, हमको कोई गाना प्ले करना है, और वी हैव टू मेक सम डॉक्यूमेंट। तो ये जो सारे छोटे छोटे एप्लीकेशंस रहेंगे जो हम यूज करके हम हमारा काम करेंगे, वो बन जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझा? इज इट क्लियर? यस मैम। यस। सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग डिवाइसेस के लिए। तो अगर आप डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे तो दीज आर द मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुने होंगे, है ना? अगर आपका नॉर्मल मशीन है तो आप जनरली क्या यूज करेंगे? द मोस्ट यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम इज विच वन? विंडोज, राइट? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट इज व्हाट? लिनक्स। लिनक्स भी कोई भी मशीन पे चलेगा। कैन यू टेल मी, कैन आई इंस्टॉल अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ एप्पल मशीन? यस मैम। Yes, यस। but which one is preferred? मैक। मैक See, मैक ही प्रेफर करते हर एक डिवाइस के लिए एक अलग डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम जो यूज करते हैं इंटेल के मशीन, वो हम उस पे विंडोज डाल सकते हैं और लिनक्स भी डाल सकते हैं, बट जो एप्पल के डिवाइसेस है उसमें मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट, अभी ये तो बन गए डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम कौन सा डिवाइस अभी मैक्सिमम यूज करते हैं? हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप से ज्यादा हम क्या यूज करते हैं? Android. मोबाइल यूज करते हैं ना, मोबाइल यूज Mobile. करते हैं। हाँ, राइट। तो मोबाइल के भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर आपका नोकिया फोन है तो उसकी है नोकिया आशा, जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन ये जो ग्रीन वाला खड़ा है वो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है?
Android. Android. This is the most widely used operating system, है ना, और वो काफी यूजर फ्रेंडली भी है, ठीक है. देन नेक्स्ट इज व्हाट, ब्लैकबेरी. ब्लैकबेरी अभी इतना ज्यादा नहीं है उसका बूम, पहले बहुत था ब्लैकबेरी का, है ना. और देन लास्ट वन क्या है, ये एप्पल का मैक, iOS. है ना, iOS. वेरी गुड, जो कि एप्पल के मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज होता है, राइट. तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखेंगे लेक्चर में. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन टू लिनक्स. और जो लिनक्स का हम कौन सा फ्लेवर, यस, We can't see properly. नहीं, वैष्णवी प्लीज म्यूट योर No, माइक. ma'am, we can see. प्लीज चेक योर रेंज, है ना. कभी कभी होता है कि आपकी रेंज कम हो गई हो या कोई कॉल आया हो, तो इट हैपेंस कि आपका डेटा कट हो जाता है बीच में, मोबाइल डेटा. Okay, ma'am. डोंट वरी, आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स, डोंट वरी, ठीक है. तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, उबंटू. अभी ये देखो क्या है, ये GUI मतलब क्या है, Graphic user interface. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. मतलब क्या है, कैन यू टेल मी इन सिंपल लैंग्वेज, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या काम रहेगा उसका? It will make things easy for us to work on. ओके, सी अभी मैं बताती हूँ. आप अगर कोई कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो देयर आर टू वेज. एक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड सेकेंड इज द कमांड लाइन इंटरफेस, है ना. मतलब आप कोई कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं तो मोस्टली मेजर पीपल यूज दिस वे, विच इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें क्या रहता है, अलग अलग ऐसे आइकॉन्स वगैरह रहते हैं और जिनको आप ओपन करते हैं या कोई ड्राइव को जाना है तो आप सिर्फ क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, है ना. इट इज वेरी सिंपल. बट दिस थिंग, द सेम थिंग कैन बी अचीव्ड यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस. मतलब एक ऐसी ब्लैक स्क्रीन आती है जिसको बोलते हैं टर्मिनल, और उसमें हम कमांड्स एक्चुअली टाइप करते हैं and it will do the same thing as like you do by just double clicking the icons. समझ में आया. तो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो देयर आर टू वेज. आपको डॉस याद है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, द ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, नो आइकॉन्स वर देयर. उसमें भी क्या आता था, एक कमांड प्रॉम्प्ट आता था, एक ब्लैक स्क्रीन आती थी और जिसमें हम कमांड टाइप करते थे. और एक्चुअली मतलब मुझे अगर डी ड्राइव में जाना है तो आई हैव टू टाइप सम कमांड विच विल टेक मी फ्रॉम सम ड्राइव और सम डिवाइस नहीं बोल सकते, सम ड्राइव टू अनदर ड्राइव. मतलब मैं अभी करंटली सपोज सी ड्राइव में हूँ और मुझे डी ड्राइव में क्या है देखना है, तो मुझे कमांड टाइप करना पड़ता है वो ब्लैक स्क्रीन पे. देयर आर नो आइकॉन्स जिसको मैं डबल क्लिक करके डी ड्राइव पे जाऊँ, ठीक है. समझ में आया. तो कोई भी मशीन के साथ आप जब इंटरेक्ट करते हैं तो देयर आर टू वेज. GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे आपको ऐसे आइकॉन्स वगैरह दिखेंगे जो कि ग्राफिक्स है ना, और जिसको हम क्लिक करके हम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. तो दिस इज वन मेथड विच इज कॉल्ड एज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस मतलब क्या है, यूजर और मशीन के बीच वाला इंटरफेस. कि अगर ये जो स्क्रीन है हमको वो दिखेगी नहीं तो हम कंप्यूटर में कैसे यूज करेंगे कि डी ड्राइव में कहाँ जाऊँ या मेरा मोजिला फायरफॉक्स ओपन करूँ. तो उसके लिए क्या है, छोटे छोटे आइकॉन्स जो हम उसको डबल क्लिक किए तो हम हमारा काम कर सकते हैं, राइट. समझ में आया GUI पार्ट? यस मैम. तो अभी देखो ये है CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस. सपोज मुझे अभी मोजिला फायरफॉक्स मैंने GUI में जाके डबल क्लिक करके क्या क्या ओपन किया, तो नाउ आई एम यूजिंग द मोजिला फायरफॉक्स. सिमिलरली मुझे अगर मोजिला फायरफॉक्स ओपन करना है बट नॉट बाय यूजिंग द GUI मोड, आई वांट टू यूज द CLI मोड, तो क्या होगा, मुझे ये टर्मिनल जो है वो ओपन करना पड़ेगा. वो मुझे करंटली मैं कहाँ हूँ वो बताएगा, कौन से मतलब कौन से ड्राइव पे हूँ या कहाँ हूँ, मेरी पोजीशन कहाँ है. और उधर से मैं मोजिला फायरफॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए कुछ अलग अलग कमांड्स रहते हैं. विल सी इन द अपकमिंग स्लाइड व्हाट ऑल कमांड्स आर देयर, ठीक है. तो ये जो ब्लैक टर्मिनल है ना, वहां पे हमको एक्चुअली टाइप करना पड़ेगा और हमारी एक्टिविटी वो वैसे की वैसी परफॉर्म होती रहेगी. समझा. तो दिस इज कॉल्ड एज द CLI. इन द नेक्स्ट स्लाइड देयर आर सम कमांड्स
and we'll see what exactly they do. So here you can see the command list. आपको दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. हाँ, तो in short हम देखेंगे ये क्या क्या करते हैं. So there is one command called as ls. ls का काम क्या है? It will list all the directories, या मतलब it will list all the folders and files present in the current drive or current folder in which you are. Suppose मैं अभी मेरा current सी यहाँ पे हम देख रहे हैं, ग्रीन में जो दिखता है वो करंटली हम कौन से इसमें है. सपोज डी ड्राइव में चली गई, तो नीचे क्या आएगा? उधर आएगा डी ड्राइव में हूं मैं करके, और आगे मैंने अगर लिखा सिर्फ ls तो वो क्या दिखाएगा? मेरे डी ड्राइव में कितने फाइल्स है और फोल्डर्स है यूजिंग दिस ls कमांड. सिर्फ ls टाइप करना है. समझा? इज इट क्लियर? ये छोटे छोटे कमांड्स है ना, वो अलग अलग काम करते हैं. वैसे ही pwd जो है वो काम क्या है उसका? इट विल प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी. मतलब अब आपको समझेगा नहीं कि यार मैं कहाँ हूँ, कौन से डायरेक्टरी में हूँ, कौन से डायरेक्टरी मतलब फोल्डर. ओके, सो इन विच फोल्डर आई एम. सो इफ आई टाइप हियर आफ्टर दिस $sign pwd, इट विल शो मी वेयर आई एम करंटली. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? हु एम आई. क्या करता रहेगा ये हु एम आई? Yes, can anybody tell? It will show the name of the current user. Of the user. मतलब क्या है? नहीं समझा मुझे. एक ही तो मैंने अभी मेरा मशीन लॉगिन किया है तो मेरा ही नाम दिखना चाहिए ना. ऐसे हो सकता है क्या मल्टीपल यूजर एट अ टाइम लॉग्ड इन है? हो सकता है. हम हमारे मशीन पे आपको दिया जाता है कि आपके कितने, कि मैंने अगर आपके मशीन में 2 यूजर्स आपने क्रिएट किए हैं तो एट द स्टार्ट क्या दिखाता है? दोनों दिखाते हैं आपको. अगर सपोज आपका मेरा 2 आईडीज है मेरे मशीन में, एक पर्सनल और एक सपोज ऑफिस, ऐसे मैंने 2 अकाउंट्स क्रिएट किए हैं. तो मैं अभी पर्सनल में क्लिक करके पासवर्ड डाल के इन हो गई, तो मुझे क्या दिखाएगा कि मेरा पर्सनल वाला लॉगिन चालू है. ठीक है. सपोज आई लॉग आउट, अगेन मैं ऑफिस का जो मेरा लॉगिन है उससे लॉगिन करती हूँ, और फिर से टर्मिनल में हु एम आई लिखूंगी तो वो मुझे इस बार कौन सा यूजर दिखाएगा? मेरा ऑफिस वाला जो लॉगिन नेम है वो दिखाएगा. समझे? तो इट कैन हैपन दैट देयर आर मल्टीपल यूजर अकाउंट्स एंड यू वांट टू चेक थ्रू विच अकाउंट आई एम लॉग्ड इन, है ना. तो वो जो यूजर का नाम है वो उधर प्रिंट करेगा. कौन? ये जो कमांड है हु एम आई. इज इट क्लियर? यस मैम. हाँ, अभी ये सारे डेप्थ में नहीं जाते, लास्ट देखेंगे हम क्लियर. क्या रहेगा क्लियर? अभी देखो हम क्लियर मतलब जो भी हम कमांड है वो एक्चुअली टाइप करेंगे. तो ऐसा हो सकता है कि मैं टाइप करते करते मेरी पूरी स्क्रीन भर गई, तो ऐसे ना डिस्टर्बेंस होता है. तो मुझे चाहिए कि मेरी स्क्रीन पूरी क्लियर हो जाए. क्लियर हो जाएगी मतलब वो डिलीट नहीं होती है. माइंड वेल, इट ओनली टेक्स ऑल द कमांड्स upside in such a way that they are not visible but they are there in the terminal. समझे? मतलब क्या हो जाएगा? मैंने क्लियर अगर बोला ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ना वो जो मेरे कमांड्स प्रीवियसली जो मैंने भी टाइप किए हैं वो ऊपर चले जाएंगे एंड यू विल गेट अ स्क्रॉल बार हियर. सो दे वोंट बी एक्चुअली डिलीटेड. ओनली क्या है जो आपको व्यू हो रहा है ना स्क्रीन, ये अभी व्यू हो रहा है हमको बराबर, ये क्या है? क्लियर है एकदम. बट अगर मैंने सेशन स्टार्ट किया और उसमें उसके पहले कुछ मैंने कमांड्स टाइप किए हैं तो क्या हो जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे, विच विल बी देयर बट नॉट विजिबल. क्लियर? तो ऐसे अलग अलग कमांड्स हम देखेंगे. एंड दिस इज व्हाट नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग. फिर नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि अलग अलग कौन से टाइप के नेटवर्क होते हैं, नेटवर्किंग क्यों चाहिए, दैट ऑल थिंग्स विल बी लुकिंग इनटू. ओके, so that's it for the first chapter, and when we'll be back from our vacation we'll start with. इसमें समझा हमने ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा मैक्सिमम 50% तो हो ही गया है डिस्कस करके. सो व्हेन विल बी स्टार्टिंग द एक्चुअल चैप्टर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विल क्विकली फिनिश अप दैट चैप्टर. ठीक है? आज के सेशन में कुछ डाउट है आप लोगों को? नो मैम. नो मैम. समझ में आया सब? ओके ओके, वेरी गुड. 1 minute, I'll just download your attendance and then you can leave the session. So we are done with today's session. Okay.
So bye bye students. Happy Diwali. We'll be meeting after the Diwali vacation. ठीक है? Happy Diwali, Ma'am, you ma'am. will share this Yeah. PPT on. Yes, yes. Happy Diwali, ma'am. Happy Yes. Diwali, ma'am. Yeah. I'll be sharing. Same to you. Same to you. I'll be